हाय दोस्तों, मैं अमरीश पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने पांडे ब्लॉग चैनल पे। मैं यहां पे आपको हिंदी एडिटोरियल पढ़ाता हूं जिससे आपके इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर आप बोले इंग्लिश रीडिंग स्किल जो है इम्प्रूव होगी, और साथ साथ उसका वर्ड मीनिंग बताता हूं ताकि आपको वो कॉम्प्रिहेंशन समझ में आए, एडिटोरियल समझ में आए और आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल है वो भी अच्छा हो जाए, ताकि आपको जो पूछा जाता है इंग्लिश में एसएससी पेपर में या फिर बैंकिंग सेक्टर में जो पेपर आते हैं कंप्यूटर एग्जाम में, वो आपको हेल्पफुल कर सके और आप इंग्लिश पेपर में अच्छा करके मार्क्स ला सके। तो चलिए आज का हिंदू एडिटोरियल पढ़ते हैं और उसका वर्ड मीनिंग के साथ साथ सिनोनिम्स भी जानेंगे ताकि आपका वोकैब सेक्शन भी अच्छा हो जाए। तो ये रहा आज का द हिंदू एडिटोरियल। Clear and distinct. The verdicts in the assembly elections hold different lessons for different parties. Elections present an opportunity for political change, but voters at times prefer the familiar comfort of continuity and reward performance over promise. Assam, West Bengal, and Kerala have voted for incumbents. इनकम्बेंट्स एक एंटी इनकम्बेंट्स होता है, एक ये इनकम्बेंट्स वाइल हैव वोट फॉर द इनकम्बेंट्स। जो ये सब भारी भारी वर्ड है उनका मैं मीनिंग बता दूंगा अंत में, तो मेरे साथ अंत में बने रहिएगा। वाइल तमिलनाडु एंड पुदुचेरी हैव वोटेड फॉर चेंज, इसके साथ साथ बता देता हूँ आपको मीनिंग। इलेक्शन हुआ, चलिए पूरा पढ़ लेता हूँ उसके बाद फिर बताता हूँ। देयर इज़ नो वन theme that can explain how the voters responded to the myriad political choices before them. Parties with strong and visible leadership might have the same appeal as leaders that show empathy for their daily struggles. While Hindutva nationalism won Assam for the BJP, in West Bengal, Tamil Nadu, and Kerala, its limit become apparent. In fact, M.K. Stalin in the Tamil Nadu and Pinarayi Vijayan in Kerala, मतलब तमिलनाडु के M.K. स्टालिन और पिनरई विजयन केरला, अभी फिलहाल पिनरई विजयन केरला के सीएम है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ करंट अफेयर्स आपका रिकॉल हो गया कि तमिलनाडु के M.K. स्टालिन बनेंगे पक्का और पिनरई विजयन केरला के, ये दो सीएम याद रखिएगा फिलहाल के लिए, जो क्योंकि अक्सर पूछा जाता है जो न्यू इलेक्शन होता है जहाँ पे चुनाव होते हैं। Both known critics of Prime Minister Narendra Modi offered an ideological alternative to the politics of the BJP, although it wasn't a direct contender for power directly in either state. In contrast, the Congress effort to arrest it slide and gather more chinks in the armor, while regional parties of feared robust resistance to the BJP. In West Bengal, Mamata Banerjee mobilized Bengali sub-nationalism that stopped the rampaging march of Hindutva at the border, at least for now. This was the first serious bid of the BJP for power in Bengal. Though it fell far short of its boast, the BJP raised the remarkable from 3 seats in 2016 to 81 now, with the left and the Congress nearly obliterated. The BJP is now a force to reckon with in the state, but what got it so far may not necessarily take it any further. In fact, the popular reaction against the BJP crude communalism and deployment of its worker from the other states was so intense that people left aside all their complaints against the incumbent Trinamool Congress government. The BJP strategy for West Bengal has been costly in terms of public health, institutional credibility, social harmony, and even bilateral ties with a friendly neighboring country, Bangladesh. Though the BJP lost, the damage caused by its maximalist campaign cannot be easily undone. The state is starting an explosion in COVID 19 infection, and Ms. Banerjee has her task cut out entering into her third term as Chief Minister. She must take serious note of the public resentment against her party.
rather than read this victory as public approval of its high handedness and corruption. The style of and substance of Trinamool politics and governance must change for the better. In Assam, the BJP reaped the benefit of government proactive measure to provide relief to people badly impacted by the lockdown last year and of a sleeve of welfare scheme. While the Congress AIDF partnership failed to live up to its promise, the BJP inflamed communal passion by suggesting the AIUDF leader Badruddin Ajmal could become chief minister if alliance won. As the party is key strategic in the victory, Finance Minister Hemant Biswa Sarma will likely make a claim for the top post, and the BJP will have an internal power tussle to handle. Mr. Stalin led to DMK to power in Tamil Nadu after a hiatus of 10 years, hiatus 10 years, with his son also now a MLA. Mr. Stalin has taken full control of the DMK. His victory is not added by an strident public resentment against the AIDMK government and therefore can be considered a positive verdict in his favor. Moreover, the result also proved the resilience of Dravidian politics, modified to new challenges. Now, in the opposition and its leadership still in a flux, the AIDMK will have to adapt to survive. There are other aspirants at play, and outgoing Chief Minister Edeppakadi K. Palaniswamy White have to again beat off challenges from within the party to his leadership. In Kerala, the second consecutive victory of the Left Democratic Front led by the CPIM marks departure from the anti-incumbency verdicts since 1980. For Chief Minister Pinarayi Vijayan, मतलब केरला में फिर से पिनरई विजयन सीएम होने वाले, जैसा कि मैंने पहले बता दिया. The Congress rendered aimlessly by the anti-Delavian leaders was easy prey, but Mr. Vijayan also retained his support base through a mixture of political acumen and administrative measures. Having managed two floods and the pandemic with considerable efficiency, he also made some daring moves in social engineering that will continue to ripple. All that paid rich dividends for him. But the path ahead is going to be tougher as Kerala faces a fresh surge in COVID 19 infections. Finances are also challenging for the states. Mr. Bijayan's complete command over the party has eclipsed the leaders, a situation that can turn out to be a crisis in the future. The result also holds some messages for national politics. For the Congress and its leader Rahul Gandhi, it is a grim reminder that they have to no viable politics at the moment. Mr. Gandhi spent a disproportionate amount of time and energy in Kerala that turned out be a counterproductive strategy. The party lost Kerala and Assam, the two states it had a chance to win. Mr. Gandhi has to rethink his freelancing, footloose politics. For the BJP and its leader, Mr. Modi and Home Minister Amit Shah, these results must be sobering. In Kerala, the party scored nil, losing the lone seat it won in 2016. In Tamil Nadu, it might have been damaged the prospects of ally AIDMK. The notion that there can be a nationalist straitjacket into which the diversity, कभी कभी मेरा भी जीभ लड़खड़ा जाता है, diversity of India will fit is irresponsible. They must consider a soft
pursuit of power. The left tested historic victory in Kerala but faces extinction in Bengal. Experiment in exclusive Muslim politics are not worthwhile. The result. So, the Indian Secular Front, founded by a cleric in West Bengal, hardly had any impact in Assam. The AIUDF Congress appear to have failed to aggregate their individual tallies of 2016. The BJP might have lost more than it won, but Sunday verdicts are no indication that national level alternative to it is in the making. That is still some distance away in the time and effort. जैसा कि आप सब जानते हैं 5 राज्यों में चुनाव हुआ. इसका ये कहना है पूरे देश में उल्टा पुल्टा हुआ. असम जहाँ था, असम में बीजेपी आई जहाँ से थी पहले. बंगाल में ममता बनर्जी थी, टीएमसी की पार्टी, वो फिर से आई. सिर्फ तमिलनाडु में चेंज हुआ. केरला में पिनरई विजयन जो थे पहले वैसे ही आए. जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका कहना कि यहाँ पर वोटर्स का कोई दिमाग नहीं पड़ सकता है. कहाँ कैसे कब हो जाए कोई नहीं समझ सकता है. इनकम्बेंट और ये जो हार्ड वर्ड है इनका मैं ये बताता हूँ. इस पैराग्राफ का यही मतलब है कि क्लियर और डिस्टिंक्ट, मतलब पूरा अच्छे से साफ सुथरा तरीके से बता दिया गया असेंबली इलेक्शन का क्या क्या हुआ है पॉलिटिकल, और जो साथ में रहेगा उसी को वोट मिलेगा. और फिर से बात कही गई है कि राहुल गांधी ने केरला में बहुत सारा समय बिताया पर उनको जीत नहीं मिली. वेस्ट बंगाल में बीजेपी थी. वेस्ट बंगाल में बीजेपी 3 से 81 आई जो 2016 में 3 थी. जैसा कि आपने देखा यहाँ पे आप लोग देखा 3 से 21. फिर से लेफ्ट और कांग्रेस नियरली ख़त्म ही है. फिर से बीजेपी उतना कुछ कर नहीं पाई. उनका हिंदुत्व कम्युनिज्म वहीं ख़त्म हो गया. उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल की जनता ने सब कुछ भुला करके उनको फिर से अपना सीएम बनाया. मतलब वो हुआ. सब कुछ कोशिश किया था बीजेपी ने. बांग्लादेश के साथ बायलैटरल मीटिंग की थी, फिर भी बीजेपी लॉस्ट हो गई, हार गई. उसके बाद फिर चलते हैं कोविड-19 के चलते तो भी था. तो उसका कोविड-19 का तो चल ही रहा था. उसमें रैलियाँ, फिर से महामारी, फिर उसके बाद से महंगाई, इन सब की वजह से तो हारना ही था. फिर चीफ मिनिस्टर वहाँ की थी तो बहुत अच्छा काम कर रही थी, इसलिए वो जीत गई. और फिर चलते हैं उधर कांग्रेस AIUDF जो केरला में था वो भी तमिलनाडु में था वो भी हार गई. आसाम में तो जीत गए बीजेपी वाले, NDA अलायंस, बीजेपी नहीं बोले NDA अलायंस. फिर मिस्टर स्टालिन DMK तमिलनाडु जो मेरे ख्याल से CM हो सकते हैं 10 साल बाद फिर जीते हैं AIDM को हरा करके. तो ये था ये आज का हम लोग का द हिंदू का एडिटोरियल. यही तो शॉर्ट ऐसे टाइप का था, थोड़ा बड़ा है लेकिन था यही. तो चलिए जो हार्ड वर्ड है उसका मीनिंग जानते हैं और साथ में सिनोनिम्स भी. आज का द हिंदू एडिटोरियल 3 अप्रैल 2021 मंडे. तो जो हमने पढ़ा एडिटोरियल उसका थोड़ा हार्ड वर्ड जान लेते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है और साथ में सिनोनिम्स में. डिस्टिंक्ट मतलब विशिष्ट, स्पष्ट, स्पेसिफिक, डेफिनेट, अपरेंट, प्रोमिनेंट. इसका होता है सिनोनिम्स. अ डिस्टिंक्ट स्मेल ऑफ निकोटीन, मतलब एक विशिष्ट स्मेल होता है निकोटीन का जो हम लोग खाते हैं. मतलब सब खाते हैं हम लोग नहीं, जो खाते हैं. वर्डिक्ट मतलब निर्णय, मत, विचार, डिसीजन, जजमेंट, ओपिनियन, रिजल्ट. नोबडी कैन प्रेडिक्ट द वर्डिक्ट ऑफ पीपल. कोई भी निर्णय क्या होगा पीपल का कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है, मतलब नहीं जान सकता है चाहे कुछ भी कर ले. फिर इनकम्बेंट मतलब होता है पदधारी, जो अभी है, जिसके पास है वो शक्ति. होल्डर, बियरर. द प्रेजेंट इनकम्बेंट विल सून बी रिटायरिंग, मतलब जो अभी पदधारी है जल्दी वो रिटायर कर जाएंगे. आप लोग भी ऐसा एक वर्ड बनाइएगा ताकि आप उस वर्ड को अच्छी तरह से यूज़ करना सीख जाएंगे और अपना वोकैब सेक्शन को अच्छा खासा इंप्रूव कर पाएंगे. मेरिड मतलब असंख्य, बेशुमार, काउंटलेस, सेवरल, मल्टीपल होता है. द मेरिड लाइट ऑफ द सिटी मतलब बहुत सारे लाइट्स है सिटी में. उसके बाद फिर चिंग्स, चनकता, ठनकता, दरार. जो हो जाता है ना, चनक जाता है, जो ग्लास टूटने में चनक नहीं जाता है, अरे चनक गया यार. तो इसे गैप, ब्रीच, ब्रेक, स्पेस, रैटल बोलते हैं. रैटल को याद रखिए, रैटल थोड़ा अच्छा वर्ड है, वो पूछा जाएगा. आर्मर मतलब 2 चीज़ होता है, कवच, असला, सब बारूद होता है, शस्त्र का हथियार बंद. तो उसे बोलते उसको एक तरह से शील्ड लिया जाता है. और वेपनरी मतलब देखते नहीं है PUBG में या फिर जहाँ पे अरे भाई आर्मर ले आर्मर. द किंग्स वेयर्ड हेवी आर्मर इन द बैटलफील्ड, मतलब जो राजा लोग वो हेवी कवच पहनते हैं बैटलफील्ड में ताकि उन लोग चोट ना लगे. फियर्ड मतलब मुरझाया हुआ. इसका आप लोग सेंटेंस खुद बनाइएगा.
जैसे फ्लावर इज फेयर्ड मतलब मुरझा हुआ है। रोबस्ट, रोबस्ट मतलब मजबूत, ठोस, तगड़ा, पुष्ट होता है। स्ट्रॉन्ग, सॉलिड, हेल्दी, मस्कुलर, विगोरियस, ये विगोरियस थोड़ा अच्छा वर्ड है। स्टडी भी अच्छा वर्ड है, ये दो थोड़ा अच्छे से अपने दिमाग में रखिएगा। और इन दोनों का रोबस्ट तो मैंने बना दिया है, विगोरियस और स्टडी का खुद से बनाइएगा। आवर सोल्जर्स आर हैविंग रोबस्ट नेचर, हमारे जो है उनके पास रोबस्ट नेचर, वो मजबूत होते ही है भाई। इतना अच्छा खासा ट्रेनिंग होता है, हम लोग का देश की सेवा करते हैं तो होगा ही। रैम्पेजिंग, उन्माद, भगदड़, हंगामा, फ्रेंचाइज, वाइल्ड, आउट ऑफ कंट्रोल, राउटिंग। यूथ वेंट ऑन रैम्पेजिंग आफ्टर विक्ट्री, जन्मे करते हैं नौजवान लोग, थोड़ा गर्म खून होता है, जिन पूरा उन्माद में हो जाते हैं विक्ट्री के बाद। उसके बाद है ऑब्लिटरेट, नामो निशान, मिटने के कगार पर, मतलब है फिर नहीं है। रिड्यूस टू नथिंगनेस, ब्लॉटेड आउट। आर्टिस्ट आर कंप्लीटली ऑब्लिटरेटेड आफ्टर देयर पुअर परफॉर्मेंस, मतलब जो आर्टिस्ट है वो इतना खराब परफॉर्मेंस वो सोचे कि हम लोग का नाम निशान खत्म हो जाएगा, अब थिएटर में कुछ काम मिलने है नहीं, इसलिए ख़त्म। रिकॉन, मानना, अनुमान करना। बिलीव, फील, काउंटेड, सरमाइज, सरमाइज ये अच्छा से थोड़ा देखिएगा, ये इंग्लिश वर्ड में अच्छा पूछा था। द इवेंट वाज रीनो ऑफ फेलियर, मतलब जो है इवेंट लोग सोचे समझदारी हो कि वो फालतू हो गया। अनुमान कर लें कि ये जो घटना है, मतलब ये जो इवेंट हो रहा है वो फेलियर की तरफ जा रहा है। फिर क्रूड, क्रूड मतलब असिस्ट होता है, एक कच्चा भी होता है, अपरिष्कृत और कच्चा भी होता है। रूड मतलब असिस्ट होता है मतलब खराब, वल्गर, अनरिफाइंड मतलब कच्चा हुआ, मतलब प्रिमिटिव मतलब वैसा ही रफ। क्रूड जोक मतलब एक भद्दा जोक, या फिर देखिए यहाँ ये एक दो वर्ड दिया, द शिप कैरिंग क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल। उसके बाद रिसेंटमेंट, नाराजगी, रोष, द्वेष, ये सब होता है, तो उसका मैलिस से क्या अच्छा से याद रखिएगा। मैलेवलेंस बार बार आपको मिलता है। फिर बिटरनेस, आक्रूरता, रेज, ये सब जो वर्ड है बहुत अच्छे से याद रखिएगा, जो बार बार पूछे जाते हैं। रिसेंटमेंट, ही रिसेंटमेंट एंड बीइंग डिमोटेड, मतलब जब उसको डिमोट किया तो उसका नाराजगी बढ़ गया था, अरे यार मैं हमको क्यों कर दिया डिमोट, प्रमोट करो तो खुश होता ना। रिपील, फल भोगना, काटना, मतलब कुछ अच्छा करते हैं ना तो फल नहीं भुगते हैं, तो उसका हो गया ड्रॉ, अप्लॉस। क्रॉप, क्रॉप मतलब काटना होता है, जैसे खल नहीं का धान काटा है, पर यहाँ पर इसी के अनुसार क्या बोलते हैं, वो जो एडिटोरियल के अनुसार फल भोगना है, मतलब जो स्टूडेंट रिपेड द बेनिफिट ऑफ देयर हार्ड वर्क, मतलब जो स्टूडेंट हार्ड वर्क करते हैं वो अपना फल भोगते हैं, नौकरी वोकरी मिल जाता है उन लोगों को, या फिर कुछ अच्छा जॉब करने लगते हैं। स्लीव, ढेर सारे, घुमाना, मदहोश करना। बैच, मेस, लॉट, डॉप, डोप याद रखिएगा अच्छा। असली ऑफ जर्नलिस्ट, बहुत सारे जर्नलिस्ट का घेर। उसके बाद फिर टसल मतलब संघर्ष, झगड़ा। टसल भाई, टसल मसल, मसल द टसल, देख रहे हो मसल में टसल है, तो वही स्कफल याद रखिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है। फिर से अफ्रे, स्क्रैम्बल, स्क्रीमेज, ये सब अच्छा वर्ड है। द किड्स टसल्ड विथ ईच अदर, जन्मे करते कितना झगड़ा करते हैं बच्चे। उसके बाद फिर हाइटस, हाइटस मतलब कमी, अभाव, खाली जगह, मतलब कुछ चल रहा है फिर बीच में टूट गया, इंटरवल जिसको बोलते हैं, जैसे तरह से ब्रेक, इंटरवल, शॉर्टेज, पॉज, ये सब होता है। देयर वाज ए ब्रीफ हाइटस इन द वॉर विथ पाकिस्तान, मतलब जब करता अभी कुछ पाकिस्तान से नहीं हुआ, फिर चालू हो जाएगा, तो अभी इंटरवल है ना तो उसको हाइटस बोल दिए। फिर स्ट्राइडेंट, स्ट्राइडेंट मतलब कठोर, तेज, एकटक, मतलब एक बार खराब, रफ, हार्स, ग्रैंड, ग्रेटिंग और स्ट्रूडलेंट, ये थोड़ा याद रखिएगा। लाउड, तेज से बोलना, मतलब हिज वॉइस हैड बिकम इंक्रीजिंगली शार्प, ऑलमोस्ट स्ट्रिडेंट, मतलब उसका वॉइस बढ़ते गए, बोलते नहीं कोई जीत जाता है या फिर कुछ भी ऐसा पावर आता है, ओ ऐसे कर चिल्लाता है, तो जन्म कर तो स्ट्रिडेंट टाइप का हो गया। फिर रेजिलेंस, मतलब रेजिलेंस होता है लचीला, पलटाव, फ्लेक्सिबिलिटी, प्लास्टिसिटी। नायलॉन इज एक्सलेंट वेरेबल एंड नायलॉन जो होता है जन्म कर कितना अच्छा पतला दुबला होता है और रेजिस्टेंस भी होता है, लचीलादार होता है नायलॉन। फिर फ्लक्स मतलब प्रवाह, प्रचुर बहकर निकल जाना, बदलाव, निरंतर बदलाव होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रीम, करंट, एफ्लुएंट, ये अच्छा याद रखिएगा, एफ्लुएंट बहुत थोड़ा ही होता है। फिर कंटिन्यूअस चेंज, हिज ओपिनियन इन फ्लक्स, मतलब इसका कुछ का अति ओपिनियन चेंज होता रहता है, निरंतर कुछ ना कुछ होता रहता है। एक्यूमेन, कुशाग्र बुद्धि, प्रखर बुद्धि, मतलब बुद्धिमान आदमी जिसको बोलते हैं। एस्टिट्यूटनेस, ये बहुत ही अच्छा। फिर श्रूडनेस, बिजनेसमैन एक्यूमेन, जहाँ जिनमें करते हैं बिजनेसमैन कितना चालाक होता है, कुशाग्र बुद्धि होता है। फिर रिपल, लहर, तरंग, इसका होता है अनड्यूलेट पॉपल रिज, ही डाइव्ड इनटू द पूल लिविंग बेयरली, मतलब लहर छोटा मोटा तहर नहीं होता है उसी तरह से, तो रिज भी होता है उसका, कुत्ते ही छोटा मोटा होता है। फिर ग्रीम, ग्रीम मतलब भयंकर, विकट, सोचनीय, दयनीय होता है। फियर्स, हाइडियस इसको याद रखिएगा। फिर स्टर्न याद रखिएगा, जैसे राहुल गांधी अब हारे हैं तो उनका तो खत्म ही होने वाला है, तो उसको ग्रीम मतलब भयंकर, बस ग्रीम थिंकिंग करना पड़ेगा, भयंकर थिंकिंग करना पड़ेगा, नहीं तो हम कट जाएंगे। हिज ग्रीम एक्सप्रेशन मतलब भयंकर वो दिखता है। फिर वेएबल, व्यवहार मतलब जीने लायक होता है। कैपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली, मतलब कुछ कर रहे हैं तो उसको सक्सेसफुल हो जाए। वर्केबल, फीजिबल, फीजिबली याद रखिएगा।
द प्रपोज इन्वेस्टमेंट वॉज इकोनॉमिकली वायबल, मतलब कोई इन्वेस्ट करता तो वो जीने लायक काम कर रहा है, वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ऐसा वो कर रहा है। फिर सोबरिंग, सोबरिंग मतलब नशे में होना, बुद्धिमता, विजडम, सैगरसिटी, ये सैगरसिटी बहुत ही जरूरी है, इसको याद रखिए। फिर सेपियंस, सेपियंस मतलब सोबरनी थॉट, मतलब एक बुद्धिमान सोच। तो चलिए ये था आज का जितना सिनोनिम्स वर्ड मीनिंग था हम लोगों ने देखा, तो चलिए इसको समाप्त करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसा लगा आज का मेरा हिंदू एडिटोरियल? यदि आप मेरे साथ ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो आपका करंट अफेयर भी अच्छा होगा और देश दुनिया में क्या चल रहा है एडिटोरियल के माध्यम से आप जानेंगे भी। इसका ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश ही हो, इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे। आप नॉलेजफुल बन सकेंगे इस दुनिया में, ताकि आप बोल सकें कि हाँ ये चल रहा है, ऐसा ऐसा कंडीशन है हमारे देश में, सिर्फ एक एडिटोरियल पढ़ करके ही है। जी हाँ, तो आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिए, पर मुझे बताइए कि हाँ लाइक भी है और डिसलाइक भी है, और कमेंट करके बताइए। यदि आप कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो क्वेरी हो तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर आपको समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।